Okay. So once again, welcome to all of you. Today there are a lot of students in the class. Very good. I'm going to start chapter 21. Name of the chapter is Framing Algebraic Expression. As I have told you that this is a very important chapter, very important chapter. And this chapter has very less calculation, but very a lot of logical thinking. You have to think logically, you have to think out of the box, you have to think how are you going to frame different expressions, algebraic expression, how to form different equations on the basis of the given information. Some information will be given to you, you will analyze the information, what the information is given. First you will analyze the information, then you will think how to form an equation or an expression with the help of given information. Okay, so let us start. First we have to understand what is algebraic expression. What is algebraic expression? Okay, so to express a given statement in terms of some variables in the form of algebraic expression is called framing of an algebraic expression. What is framing algebraic expression? It means, or it Means refers making to, algebraic yeah, expression. making algebraic expression with the help of the given statements in the terms of variables. For example, let me give you an example, तो examples में और अच्छे से समझ में आएगा. For example, if I say, okay, so if I say Talha's present age is X years. Okay, Talha's present age is X year. So his age, or if I say what will be his age after 5 years, this is the question. Okay, so अभी बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, इसलिए बोलिएगा मत, ठीक है. अभी सिर्फ उसको मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो तलहा की प्रेजेंट एज यानी यानी एट प्रेजेंट तलहाज एज इज एक्स ईयर्स. इट मींस तलहा इज एक्स ईयर्स ओल्ड. वो एक्स कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 12, इट मे बी 14, इट मे बी 15, एनीथिंग. what will be his age after 5 years? उसकी 5 years के बाद एज क्या होगी? This we have to tell in terms of algebraic expression. In terms of algebraic expression. Okay. So assume कर लो कि तलहा की एज लेट्स से 9 है. ओके, तो अगर तलहा की एज एट प्रेजेंट 9 years है, तो आफ्टर 5 years तलहा की एज कैसे फाइंड करोगे? सर प्लस कर दो. 9 9 प्लस plus 5. 5 करोगे, यही करोगे ना, 9 प्लस 5. So in the same way, X plus exactly. So in the same way, if I say Talha's present age is X years, so after 5 years, what will be his age in terms of X? In terms of X X. plus 5. X plus X 5. plus 5. At present, his age is X years. So after 5 years, his age will be X plus 5. Now this X plus 5 is the algebraic expression. और ये आपने अपनी थिंकिंग से, यानी you have used your own logic and thinking and you have made this expression. तो ये तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था जो आपने इसे फॉर्म किया. बस यही हमें इस चैप्टर में करना है. यानी कि देखो, आपको क्या था, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी ब्लू से, जो जितना भी मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, वट एवर आई हैव रिटन विद द ब्लू कलर इज द इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज द algebraic expression which you have formed with the help of this information. तो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, you have to form the algebraic expression. Okay. Yes, sir. Okay, so
Now, if there is a rectangle and the length of the rectangle is, hello, hello, Yes, sir. beta screen Yes, visible sir. है? Yes, sir. Yes. बीच में अगर ड्रॉप हो जाता है या कुछ मीटिंग ऑफ हो जाती है तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना. ओके, सो Okay, sir. the length of this rectangle is, let's say, small l, and the breadth of this rectangle, let's say, is a small b. So what will be the area of this rectangle? L into B. L into b. L into B. This whatever I have written area is equal to L into b. This is also an equation, Algebraic. Yes, sir. algebraic Equation. equation, or L into b is the expression. Okay, L into b is the Yes. expression. So let's say the speed of a car. What is the formula of speed? Speed is equal Speed to is equal to distance. Upon distance upon time. distance upon time. So this is not just a formula, this is an equation, and d upon Yes, t is the expression. Okay. Okay. Okay, so we will see some more example. Now I will give you some statements. So we have to write in the comment section. No, you just listen, you don't have to write anything, just listen carefully. Okay, and you have to just think about the formula or the expression. Formula or expression. पहले आप जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा उसे ध्यान से सुनोगे, फिर सोचोगे कि उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है या एक्सप्रेशन कैसे लिखना है. So the first statement is the sum of two numbers x and y is 75. There are two numbers x and y, and the sum of these two numbers, sum of x and y is 75. अब ये एक इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेंटेंस के फॉर्म में है, ये कोई ना तो कोई एक्सप्रेशन है, neither it is an expression or nor it is equation. You have to form an algebraic expression. And how are you going to do that? First, read the information. Sum of x and y is 75. So you will write x plus y. It means sum of x and y is means equal to 75. This is the algebraic equation or expression or formula which is formed with this information. X plus y is equal to 75. So sum of x and y is 75. Clear? Yes, sir. Yes, clear. Second, speed of a car which travels d meter in t second. Speed of a car which travels d meter in t second. यानी कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस तो नहीं दी गई, उसकी जगह पे आपको d दे दिया है, एंड टाइम इज आल्सो नॉट गिवन, उसकी जगह पे t दे दिया. तो व्हाट विल बी द स्पीड in terms of d and t? Speed is equal to d upon time. Formula. Okay, speed is equal to distance upon time. This is the speed, this is the formula for speed if distance and time is given. So basically this is an algebraic expression which is obtained from the given information. Okay. Yes, sir. Let us read one more statement. The balance rupees B in my bank account if I started with rupees A and withdrew rupees W. It means कि पहले मेरे बैंक अकाउंट में रुपीज ए थे, फिर मैंने रुपीज डब्ल्यू विड्रॉ कर लिए, मतलब निकाल लिए, और अब मेरे अकाउंट में रुपीज बी हैं. तो ये थ्री इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट हमारे बैंक अकाउंट में ए रुपए थे, then we withdrew W rupees, then we are left with B rupees. तो इस इंफॉर्मेशन को
कैसे अल्जेब्राइक फॉर्म में हमें लिखना है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, The B means which means देखो अगर मैं ऐसे देखो पहले पहले थोड़ा सा ऐसे समझो कि इसे रियल वे में, रियल एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझेंगे। लेट्स से कि हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपीज थे, इट मींस ए इज 500 एंड हमने उसमें से कितने निकाल लिए, एक नंबर दो, कितने निकाले हैं? सर 100 रुपीज 100 रुपीज निकाल लिए, चलो ठीक है 100 रुपीज निकाले, तो अब कितने बचे? 400. 400। तो आपको अगर ये 3 नंबर्स गिवन हो 500, 100 और 400, तो आप इसको कैसे सेटिस्फाई कराओगे, इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप लिखोगे 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 400। क्या ये इक्वेशन सही है? No, sir. नो सर नो, दिस इंफॉर्मेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। 400. तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? क्या हम ये लिखे 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू No, 400? sir. ये नहीं होगी. ये भी नहीं Minus होगा। सब. अगर हम ये लिखे 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 100, No, sir. 500 ये minus correct 100 is equal to 400. यस, तो the correct statement will be 500 minus 100 will be 400। तो उसी टर्म्स में 500 के प्लेस पे आपको a लिख देना है, 100 के प्लेस पे आपको w और 400 के प्लेस पे b। तो ये जो आपका निकल के आया है ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और द करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? Okay. यस सर लेकिन देखो अभी चूंकि वी आर Yes, sir. स्टार्टिंग, वी आर द बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए मैंने ये एग्जांपल देके समझा दिया, लेकिन हर क्वेश्चन में एग्जांपल देके नहीं समझाया जाएगा। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि बिना एग्जांपल के ही आप फॉर्मूला लिख लो, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो मैं अब बिना एग्जांपल के समझा रहा हूँ कि इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखो हमारे पास इनिशियली कितने रुपीस थे? At starting? 500. नो 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 नो, 500. वो तो एग्जाम्पल था, वो खत्म हो गया। हम ए, डब्ल्यू और बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब इनिशियली हमारे पास कितने थे? ओके सर ए रुपीज। A इन rupees. द बैंक अकाउंट वी हैड ए रुपीज। ओके, और ए में से कितने आपने विड्रॉ कर लिए हैं? W. सर W। तो जितने विड्रॉ किए हैं उसको माइनस किया जाएगा जितने थे उसमें से, Yes, sir. तो जितने बचे हैं वो आ जाएंगे। अगर आप इतना सोच लेते हो, यस if you can think this much, so you can definitely form an algebraic expression on your own। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा Yes, नहीं है कि बिल्कुल अभी आपको जल्दी से आ जाएगा। थोड़ा मतलब जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो you will be familiar with it and it will be the easiest thing of algebra and the very important thing, I would say very important, because अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब आप करोगे हायर क्लासेस में, तो उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना आपको आना चाहिए। Yes. Statement 4, Yes, an sir. article is bought for rupees x and is sold for rupees y, if x is greater than y, then what is the profit? देखो एक आर्टिकल है that is bought for rupees x, यानी आपने x रुपीस का उस आर्टिकल को खरीदा है। लेट्स से एक वॉच थी, तो आपने एक वॉच x रुपीस की खरीदी, फिर आपने उसे यूज किया, यूज करने के बाद आपने सोचा कि आपका मन भर गया उससे, तो आपने अपने फ्रेंड को आपने उसे y रुपीस में सेल कर दिया। ओके, x रुपीस में आपने उसको बाय किया Yes, एंड sir. y रुपीस में उसको सेल किया, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x इज ग्रेटर देन y, इट मींस कि आपने ज्यादा रुपए में खरीदा था और कम रुपए में उसे सेल किया हुआ है। ठीक है? Yes, नो वेट, x इज ग्रेटर देन y। एक Actually, मिनट, यस स्पीक अप। I have a question regarding the exercise 20B. Sir, A into A is equal to A square. a into a, in which question? So I just asked you that A into A is equal to A square.
Yes, a into a is equal to a square. Okay, sir. It's clear. Yeah, so you bought a watch for x rupees and sold it in y rupees, and x is greater than y, so profit is x minus y. बेटा प्रॉफिट तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना, Yes, sir, it's the wrong statement. यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, ये गलत लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर आपने एक वॉच खरीदी है 1000 रुपीज की और आपने उसे सेल किया 800 रुपीज में, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो हमने इसलिए x को ग्रेटर रखा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा इस केस में या लॉस होगा, सोच के बताओ, प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा, जाहिर सी बात है लॉस होगा, 200 का लॉस होगा, तो इसमें प्रॉफिट तो होगा ही, तो आप Yes. लॉस निकालो। तो आप लॉस कैसे निकालोगे? 1000 माइनस 800। तो आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, तो इसका तो हमें काम करना नहीं, तो आप क्या लिखोगे? 1000 के प्लेस पे क्या लिखोगे? x माइनस y, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से करोगे आप। Yes, sir. Express each of the following as an algebraic expression. चलो अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ ट्रिविया टाइम के लिए। एग्जाम्पल 1, अब हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे एंड यू हैव टू टेल द देयर algebraic expression. Okay, so the sum of m and n, the sum of M plus N. m and n, very good. So M इसका plus होगा N m plus into- n इज इक्वल टू Yes, नहीं, second- इज इक्वल टू नहीं होगा कुछ, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है सम ऑफ m प्लस n इज y, अगर ये कह रहा होता इज y तो इज इक्वल टू y कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो सिंपली m प्लस n। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, Sir, M is equal to M N. into N. M into N. यस, M तो multiplied बेटा by N. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, so Yes. m into n, but it is actually written mn. Into N. The subtraction of y from 6x, Is it Y minus 6X. Minus Y. बेटा देखो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, 6x minus y. The product of 8x and y. Sir, 8 into X and Y, X into Y. X into Y. Yes, 8 into x into y, which is written 8xy. Fifth, the product of x and b minus c. Sir, x into b minus c. Yes. Sir, x into small bracket b minus c. अब देखो यहाँ पे b minus c को हम लिखेंगे x into b minus c। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी किसी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को हमें मल्टीप्लाई कराना होता है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और वो प्लस या माइनस पे हो, तो फिर हमें उन्हें ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, वरना क्या होगा, ये जो x है ये सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई में दिखाई देगा और c के साथ नहीं दिखाई देगा। क्लियर? लाइक अगर Yes, आप sir. इसको लिखो x मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, तो अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि x जो है वो b के साथ है मल्टीप्लाई में और c अलग है, जबकि ऐसा नहीं था, x b और c दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट और अब लगेगा कि x b के साथ और c के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, Yes. so
Exercise 21, question 1. Write in the form of algebraic expression. Vaishnav Jaiswal, don't do this. Number 1. Parameter of a rectangle is 2 times the sum of its length and its breadth. अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन यानी 3 टर्म्स गिवन है. एक ये बात कर रहा है पैरामीटर की, which is denoted by capital P, is 2 times the sum of its length, plus b. और फिर वो लेंथ 2 की into बात L कर plus- रहा है, which is L, and फिर breadth की बात कर रहा है, which is B. ओके, सो पैरामीटर है लेंथ और ब्रेथ है. अब पैरामीटर कह रहा है कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 2 टाइम्स है लेंथ और ब्रेथ की सम के. तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, देखो ये मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे क्लियरली लिख के बता देता हूँ ताकि आपके ज्यादा समझ में आए. पैरामीटर कैपिटल P of rectangle is 2 times the sum of L and B. अब देखो बेटा, L and B कह रहा है. सबसे पहले आप क्वेश्चन को उठाओगे यहां से. कहां से उठाओगे? यहां से. इसको देखो खाली, सम ऑफ L and B. इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ L plus L B. plus B, एग्जैक्टली L plus B लिखेंगे सम ऑफ L and B को. तो सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ को हमने लिख लिया L and B. अब ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल है ये? Perimeter of a पैरामीटर. rectangle. तो P इज इक्वल टू कर दिया. अभी इक्वल मत लगाओ, ठीक है, इक्वल मत लगाओ. P. अब ये कह रहा है कि जो पैरामीटर है, ध्यान से सुनना, कह रहा है जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 2 टाइम्स है. किसके 2 टाइम्स है? सम ऑफ L एंड B के. यानी ये जो पैरामीटर है ये L प्लस B के 2 टाइम्स है. इट इज 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है. पैरामीटर, हाँ, पैरामीटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ L एंड B. इफ पैरामीटर इज ग्रेटर, और कितना ग्रेटर है? एग्जैक्टली 2 टाइम्स है. और हमें करना है इक्वल, तो हम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए? P square. क्या करेंगे जल्दी बताओ. अच्छा चलो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरा एग्जांपल देके समझाते हैं. अब मान लो यहाँ पे आपके पास है, ओके, सर L को उसका सम जो है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो बेटा, अभी देखो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपके. यहाँ पे आपके पास है एक बैलेंस, ठीक है. बैलेंस तो सबने देखा होगा ना? नहीं देखा है? Yes, sir. किसी ने नहीं देखा है? सर देखा होगा, ऐसी बात नहीं है. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस है. अभी क्या है कि ये बैलेंस थोड़ा सा लाइक ये वाला इसका जो पार्ट है वो ज्यादा नीचे है और ये वाला ऊपर की तरफ है. इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा वेट रखा हुआ है, यहाँ पे कम रखा हुआ है. और यहाँ पे दोनों पार्ट इक्वल है, इट मींस कि दोनों पे सेम वेट रखा हुआ है. ऐसा ही है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो यहाँ Sir. पे ये इस वाले पे ज्यादा वेट रखा हुआ है. इसको हम और अच्छे से यहाँ पे बनाते हैं. ओके, अब यहाँ पे मान लो रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 100 ग्राम. कितना रखा हुआ है? 100 ग्राम. और यहाँ पे 100 रखा ग्राम. हुआ है 200 ग्राम. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 टाइम्स है इस वाले पार्ट के. 2 टाइम्स है कि नहीं है? 100 Yes, sir. 100
is half and 200 is double of 100 ना. 200 100 का डबल होता है, means 200 is 2 times of 100. तो अगर हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, अब ये बताओ. इधर 100 इंक्रीज कर लो. 100 वाले पार्ट पे हम क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे. 100 इंक्रीज करना पड़ेगा. अगर हम 100 वाले पार्ट पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों पे 200 हो जाएगा और ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा. Yes. कर सकते हैं ऐसा. Yes. ओके, वेरी गुड. एक तो ये हो गया. दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि इस वाले पार्ट को 2 से डिवाइड कर दें. यस, ये भी हो सकता है. तब दोनों पे कितना कितना हो जाएगा. 100 हो जाएगा. 100 हो जाएगा. ओके, तो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास. अब जरा अपने क्वेश्चन को देखो. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो P है, the P is parameter is 2 times of this. अब मान लो आपके पास ये एक बैलेंस है. अब ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको. सो ये आपका एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है. यहाँ पे आपका P है और यहाँ पे रखा हुआ है L plus B, और P is 2 times, P 2 times है L plus B के. क्वेश्चन यही कह रहा है ना. देखो, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 times द सम ऑफ L and B. तो P अगर 2 times है और हमें करना है इक्वल, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. या तो हम L plus B में 2 से मल्टीप्लाई कर दें. एक तो तरीका ये होगा है. तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 करके इक्वल हो जाएगा. या दूसरा तरीका ये होगा इन दोनों को इक्वल करने का. क्या होगा दूसरा तरीका, अभी मैंने बताया था. डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड. या तो P को डिवाइड कर देंगे 2 से, तब भी ये इक्वल हो जाएगा. तो अब आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा. Yes. तो ये दो एक्सप्रेशन आपके बनेंगे. ऑल्दो ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा सही है, मतलब है सही दोनों हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है. ठीक है, P is equal to 2 of L plus B. क्लियर है कि नहीं है. यस, ठीक इट्स है. क्लियर. ये बैलेंस वाला जो एग्जांपल है सबसे अच्छा एग्जांपल है. व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो मेरे टीचर ने भी मुझे यही एग्जांपल दिया था, तो वही एग्जांपल मैं भी आपको दे रहा हूँ, बल्कि और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैंने आपको दे दिया है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बता दीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई. प्रॉब्लम. ये स्टेटमेंट है और ये उसका एक्सप्रेशन है. ओके. ओके. Second statement, parameter of a square is 4 times its side. Parameter, which is capital P of square, is 4 times of its side. तो देखो यहाँ पे आपको कौन सी 2 मेन थिंग देखनी है. एक तो आपको पैरामीटर देखना है, एक साइड है. तो मान लो ये आपका बैलेंस है और यहाँ पे रखा हुआ है पैरामीटर और यहाँ पे रखा हुआ है साइड, और पैरामीटर 4 टाइम्स है. अभी भी पैरामीटर वाला पार्ट नीचे होगा क्योंकि पैरामीटर इज हैवियर. क्या कह रहा है, पैरामीटर 4 टाइम्स है. तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे. किसको डिवाइड करेंगे, पैरामीटर. भाई देखो, ये वाला पार्ट नीचे है, इट मींस यहाँ पे ज्यादा वेट है. सुनो मेरी बात, पैरामीटर वाला पार्ट ज्यादा नीचे, इट मींस ये हैवी है. तो हम ये काम ये कर सकते हैं, या तो P को 4 से डिवाइड कर दें तो इक्वल हो जाएगा, या फिर हम ये दूसरा काम क्या कर सकते हैं, साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दे. तो हम अगर साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा P. देखिए P
ये बुद्धि में भी है। P एंड ये इक्वल हो जाएगा ना, तो P इज इक्वल टू 4 into side. Side. Okay, this is the Yes, expression which you have to make. एंड ये बैलेंस नहीं बना के आ जाना पेपर में, बैलेंस सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. Third, area of a square is square of its side. Now यहाँ पे what are the two things? One area and other is side. तो एक तरफ आप एरिया रखोगे, एक तरफ आप साइड रखोगे। मान लो ये टू पार्ट्स हैं बैलेंस के, एक पे एरिया रखा हुआ है और एक पे साइड रखा हुआ है। एंड व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन ये कि जो एरिया है स्क्वायर का वो साइड के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइड में स्क्वायर कर देना होगा। यहाँ पे जो स्क्वायर वर्ड है वो 2 टाइम्स आया है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। ये जो स्क्वायर वर्ड है इसका मीनिंग ये वाला स्क्वायर है, ओके? एंड ये जो स्क्वायर वर्ड है, ये जो हम करते हैं ना, एक्स में ऊपर स्क्वायर 2 लगा देते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं ना। जो ऊपर पावर 2 होती है, किसी नंबर या वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसको भी तो स्क्वायर बोलते हैं। तो ये जो 2 बार स्क्वायर आया है, दोनों में Yes, इनका sir. मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट वाले स्क्वायर का मतलब है, Yes, sir. मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बना करके। So this is the expression that you have to make. Area is equal to side square. Okay? Nobody is saying Yes, yes, sir. everybody I think is confused. सर थर्ड वाला एक बार फिर से बता दीजिए। Third says area of a square is the square of its side. तो हम लिखेंगे area is equal to side square. एरिया कह रहा है, एरिया जो होता है किसी स्क्वायर का, जो एरिया होता है वो उसकी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड के स्क्वायर के इक्वल, इस तरीके से हमें लिखना है। Yes, sir. Surface area of a cube is 6 times the square of its edge. Surface area of a cube is 6 times the square of its edge. The square of its edge. So यहाँ पे 2 things हैं। एक तो हमारे पास सरफेस एरिया है ऑफ अ क्यूब इज 6 टाइम्स, जिन चीजों पे आपको ध्यान देना है मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ। 6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एज, स्क्वायर ऑफ इट्स एज। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सरफेस एरिया एंड यहाँ पे लिखोगे एज, और एज में स्क्वायर है, मींस एज का स्क्वायर करोगे एंड दिस थिंग इज 6 टाइम्स, सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स। तो आपको इक्वल करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। अब मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ क्यूब, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब is 6 times the square of its edge, यानी एज में स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वल इसको कर दोगे। क्लियर है? So this is all for today. अभी it will be continued in the next class also. I think it will take 2 classes because it's a long exercise and 31 questions are there. So we will try to cover each and every question, okay?
So thank you everyone. Thank you, sir.